वो खून जो देश के काम आता है। This meeting is being recorded. A very good afternoon to our respected chief guest, ex-captain Dr. Sunaina Singh ma'am, convener of NEEP Dr. Prajita Majumdar ma'am, and to all the attendees present here. Army Day is celebrated on 15 January every year in India to salute the valiant soldiers who sacrifice their lives to protect the country and the citizens. Let us commence the celebration of 73rd Army Day with a harmonious melody. I would like to invite Ishmeet for his performance. So I'm here to perform the song Teri Mitti by Bipra. So let's start it. तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ धूम के भंगड़ा आबाद रहे वो गाँव में जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, दिल बन के मैं खिल जावा, कितनी सी है तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, कितनी सी है
हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, मैं मटती भी तू चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, मेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी Thank you so much. Very nice, Ishmeet. Very nice. Thank you, ma'am. It was wonderful, Ishmeet. Thank you for rejuvenating the patriotic spirit with your song. Now it's time to extend a warm welcome to our honorable guest speaker, ex-Captain Dr. Sunaina Singh ma'am, who served with the Indian Army as an intelligence corps officer, is also a national handball player, an author, and a certified life coach. Sunaina ma'am, we invite you to speak to our participants about your journey and career in Indian Army. Over to you, ma'am. Thank you so much, Ria. Thanks a lot. Thank you so much. And Ishmeet, you were too good. And this is my favorite song. And we started with a very nice note on Army Day. So thank you so much for giving me this opportunity. And basically, I'll be taking this session. And today I will be talking more about Indian Army. Fine. When I was in college, such kind of webinars never used to happen. So जो भी information हमें लेनी होती थी regarding army or anything, वो हमें खुद से लेनी पड़ती थी. But I think अभी चीजें काफी better हो गई हैं, काफी कुछ चीजें वैसे हो गई हैं, और आप लोगों को ये opportunity मिलती है. You can interact with the people who are serving, who has already served or serving, so that you know, जब हम किसी उनसे बात करते हैं who have already served there, तो we can share our experiences with you. ठीक है. और बहुत सारी चीजें होती हैं, शायद से वो हमें किताबों से सीखने को नहीं मिलती है, बट वो सारी चीजें हम कहाँ से सीख सकते हैं? We can learn from the persons who have actually experienced that. तो फिर आज मैं उसी चीजों में बात करूंगी. And this session is going to be basically, if of today 100, 106, more than that students I'm able to see here. अगर मैं दो को भी motivate कर पाई to join this STEAM organization, तो I think मेरा आज का session लेने का जो मेरा agenda था वो पूरा हो जाएगा. Fine. So coming to this, हमें सबको पता है कि मतलब आज Army Day है, 15 जनवरी को हम Army Day बनाते हैं. तो basically हम Army Day बनाते क्यों हैं? Let me start with that only. हम सबको पता है जो इंडियन आर्मी ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुई थी बच्चों, वो एस्टैब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1895, बट एट दैट टाइम इट वाज अंडर द ब्रिटिश रूल. फाइन. बट जो हमारे फर्स्ट इंडियन हेड बने थे, जो हमारे फोर्सेस के थे, लेफ्टिनेंट जनरल KM Kariappa, he was appointed on 15 January 1949. That is after our independence. तो तब से हम 15 जनवरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है हमारी इंडियन हिस्ट्री का, जहां पे हम बेसिकली फर्स्ट टाइम हमारे इंडियन सोल्जर्स ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, हमारी इंडियन आर्मी की बागडोर संभाली थी. फाइन. अब जो इंडियन आर्मी है, बेसिकली व्हाई वी आर celebrating just not for our brave soldiers, but also you know कि उस टाइम हमने बनाना शुरू किया था ऑल्सो कि ब्रिटिश रूल को ओवरकम करके ये सारी का सारा अब इंडियन आर्मी के पास आ गया था. ठीक है. आफ्टर आवर फ्रीडम. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? टुडे दिस टाइम 74th हमारा आर्मी डे है, हम बना रहे हैं इसको. बेसिकली हम ऑनर करना चाहते हैं जितने भी सोल्जर्स. Right now we all are sitting at this position, and there are people at -40 degree, -50 degrees standing there on patrol, और वहां पे अभी भी वो खड़े हैं, so that you know we all can sit आराम से अपने घर पे, और वो वहां पे सरहदों की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं. So बहुत सारे आज का दिन है. Let's honor them. Let's give them a big round of applause to all the people who are protecting us. यार उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं. Now coming to army life,
बच्चा मुझे मुझे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ठीक है, बहुत सारे करियर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशन है. लेट मी टेल ईच वन ऑफ यू राइट नाउ आल्सो, आई एम गोइंग टू द स्कूल्स, आई एम गोइंग टू द colleges also. If I ask students, acha, what do you want to become? So everybody starts with, I want to become an engineer, doctor, IAS, so many other things. अभी भी मुझे 10% बच्चे भी नहीं मिलते हैं जो मुझे कहते हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस स्टीम ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई नॉट? बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है अवेयरनेस की भी कमी है अभी भी. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई रियली वांट टू शेयर इट विद यू ऑल. जिनको ऑलरेडी पता है इट्स फाइन, बट लेट मी टेल ईच वन ऑफ यू कि दिस इज अ ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर. जाने के क्या क्या तरीके हैं, किस किस एंट्री से जा सकते हो, किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी तो मिले whether you are meant to be there or not. So today's session I will be focusing on all these things. उसके बाद still if you are left with some doubt, कोई भी doubt आप लोगों को होता है, ask me at the end of the session. Is that clear to everyone? So when it comes to Indian Army, this is an organization बच्चों where growth is a way of life. आपके करियर के हर स्टेज पे आप सिर्फ प्रोफेशनली ग्रो नहीं करते हो, यू ऑल ग्रो पर्सनली ऑल्सो. आप समझिए, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी फैमिली बन जाती है. ठीक है, यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर्सनल लाइफ ऑल्सो इज इक्वल इंपॉर्टेंट. और क्या चीज है, आप खुद सोचिए कितना एडवेंचर है. द इनहेरेंट एडवेंचर ऑलरेडी, ऑल सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. जब इंसान पूरी जिंदगी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू इंश्योर योर ऑल राउंड डेवलपमेंट विच इज सो असेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड. आप सोच के देखिए, ठीक है, एक बार आपने ज्वाइन कर ली, आपको ठीक भी नहीं लगता है, उसके बाद ऑल दोज हु आर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की तरह जुड़ लेते हैं और उसके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं. दे आर व्हेन दे कम टू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड आल्सो, they are doing exceptionally well because the kind of training they get, वो ट्रेनिंग इंडिया के अंदर और कहीं नहीं हो सकती है. बी इट bureaucracy also बच्चों, the kind of training Indian Army gives, there is no match of that. आप select कितने अच्छे प्रोसीजर से कर रहे हो, so there is no match of that. So joining Indian Army, आप सोचिए, आप सब लोगों के लिए पॉसिबल है. यू ऑल कैन ज्वाइन आफ्टर योर क्लास 12th ऑल्सो, यू ऑल कैन ज्वाइन आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो. एंड नाउ अ डेज हर तरह के, इवन पे भी अब तो बहुत अच्छी हो गई है बच्चा, जितनी भी पे एंड पर्क्स, एंड आर्मी ऑफर्स यू मोर देन दैट, इज द बेस्ट लाइफस्टाइल. No other profession is going to offer what they can offer you. चाहे वो आपकी सोशल इंटरेक्शन हो, चाहे आपके फाइनेस्ट ऑफ क्लब हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो बच्चों, मेडिकल फैसिलिटीज हो, ample opportunities are there. और क्या चाहिए यार, you will be getting paid for, you will get the pay for what all? To live a healthy lifestyle in the healthy environment. You just enter a cantonment and you'll feel it. आपकी दुनिया बदल जाती है. वो उसी शहर के अंदर, आप दिल्ली के कैंटोनमेंट में भी चले जाइए और बाकी दिल्ली में भी घूमते रहिए, यू विल फील, आपको लगे ओ माय गॉड, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली ओनली. यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली बिकॉज दे आर मेंटेनिंग इट लाइक दैट. ठीक है, सो ऑल द फैसिलिटीज आर देयर. आपको हर तरीके की, बेटा चाहे इंश्योरेंस से लेके कोई भी हो, इट इज, दे जस्ट आस्क यू वन थिंग, डू यू हैव इट इन यू? So today I'm here to ask you, do you have it in you? और in case आपके अंदर वो है जो वो ढूंढ रहे हैं, so why not to be a part of this elite organization? हम सबको चाहिए. ठीक है, हम सब भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, हम सबको बहुत रिस्पेक्ट होती है, हम सबको बहुत इज्जत होती है, बट सबको लगता है भगत सिंह किसी और के घर में ही पैदा हो जाए, है ना. हम सबको भगत सिंह बनने की जरूरत है बेटा. दिस इज व्हाट दिस लाइफ इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो इसमें सिर्फ रिस्पेक्ट से नहीं होता है. इफ यू हैव एबिलिटीज, इफ यू हैव कैपेबिलिटीज, इफ यू हैव दोस क्वालिटीज टू सर्व द नेशन, सो व्हाई नॉट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? समझिए, दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू लिव लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इट इज नॉट गोइंग टू बी एज सिंपल. सो कमिंग टू इट, if you will ask me, I'll again and again 110 times I can tell you all that there is no comparison with army, because army is never going to be your job or profession beta. It is a passion and it is going to become your way of life. आप फौज छोड़ देते हो, फौज आपको कभी नहीं छोड़ती है. ठीक है, so ऐसी beautiful चीजें हैं. You ask any of the फौजी यार, you ask them, any of them, how much you are earning, their answer will be, I'm earning 100 salutes in a day.
Are you getting me? That's what Fauj is all about. The kind of respect you get in army, nowhere else you can even dream of getting it. पैसा मिल जाएगा, कॉर्पोरेट में चले जाइए, कोई कमी नहीं है पैसे की, इस दुनिया में कहीं कमी नहीं है पैसे की, ठीक है? बट कॉर्पोरेट इज ऑल अबाउट बिजनेस, फौज इज ऑल अबाउट वैल्यूज, इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. देयर विल बी पीपल जो आपको कहेंगे साहब आप पीछे हटिए, मैं आगे जाके देखता हूं. दे आर एक्चुअली पीपल हु सर्व्स फॉर यू, और जो आपके लिए गोली खाने के लिए भी तैयार होते हैं. मैं सच कह रही हूं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नहीं हो सकता. और physical, they build you so mentally strong. Abhi recently I got an opportunity to visit Dras, Kargil. I went there at Kargil War Memorial. और मैं बच्चों आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, मूवी देखना, शेरशाह देखना, LOC देखना, ये सब एक चीज है, ठीक है? मूवी के अंदर भी देखिए, हम जब देखते हैं तो हम कितने मूव हो जाते हैं उन सब चीजों से. बट व्हेन यू एक्चुअली गो एंड विजिट दैट प्लेस, एंड अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, जब जिंदगी में मौका मिले ना, एक बार जाके देखना जरूर. My husband is posted there. He's commanding a unit over there, exactly over there, Tiger Hill के पास में, ठीक है, द्रास. Right now the weather over there is -30, -35 degree. Imagine. और -30-35 डिग्री, नॉट विद द लग्जरी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, आपके सेंट्रली हीटेड. वहां पे FRPs के अंदर बंदे रह रहे हैं अभी भी इस टाइम के अंदर. उनको एवरीथिंग इज पैक्ड. हर रोज किसी को इवैक्यूएट कराना, करना, निकलना. दे आर फाइटिंग विद द नेचर विच इज नॉट इजी. लेट मी टेल ईच वन ऑफ यू, दुश्मनों से लड़ना फिर आसान हो जाता है, बट जब ये नेचर की बात आ जाती है, उससे लड़ना किसी का बस ही नहीं चलता है उसके ऊपर. आप समझिए उस चीज को. नाउ कमिंग बैक टू इट, द मोमेंट आई वेंट देयर, I got an opportunity. ठीक है, मैं ऊपर जाके, you will not believe it, I'm an ex-फौजी, फिजिकली फिर भी मैं फिट हूँ. वहां जाके भी यू नीड एक्लेमेटाइजेशन. बच्चों थोड़ा चलने के बाद भी आपके सांस ऐसे फूल जाते हैं. फाइन. व्हेन आई वाज स्टैंडिंग एट द कारगिल वॉर मेमोरियल, मैं जैसे ही मोमेंट आई एंटर्ड इट, आई जस्ट कांट टेल यू, ये जो गाना तुम बजा रहे थे ना, मुझे अभी भी गूज बम्स आते हैं, ठीक है? आई कैन रिलेट इट टू सो मच. फाइन. और वहां जाके एक तरफ आपको टाइगर हिल दिख रही है, एक तरफ आपको टॉलोलिंग दिख रही है, और आपके सामने इतने मेमोरियल्स दिख रहे हैं. आंख से आंसू आपका रुकता ही नहीं है. यू रीड इट, यू फील इट, और फिर आपको लगता है किसके लिए दे ऑल वेंट. और जब हम कारगिल जीत सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए, दुश्मन ऊपर बैठा है. सोच के देखिए, आपको पता है कि आप ऊपर जाएंगे, आप मरेंगे. उन लोगों के अंदर क्या वो जज्बा होगा यार, कि वो फिर भी आगे गए, फिर भी लड़े, और एंड में वो जीत के आए. So when it comes to that, when I was planning to do my PhD in, मेरे को अपने PhD का टॉपिक समझना था, ठीक है, मुझे लेना था. तो मुझे समझ, मैं कहा ऐसा क्या था यार उन इंसानों के अंदर, ऐसे आप कहां से इतने मोटिवेट हो जाते हो कि आपको कुछ और नजर ही नहीं आ रहा होता है. What is that one thing? I really wanted to study that, कि क्या है कि जो वो इंसान, उनको पता है कि हम नहीं बच के वापस आएंगे, but still they had those guts, the kind of hope those people had. सोच के देखिए कितने होपफुल होंगे कि नहीं, हम जीत के ही वापस आएंगे. रेजिलियंस दे पीपल हैड. हमने कितने सारों को लूज किया, बट वो रुके नहीं. और आज के टाइम में हम यहां बैठ के हम कितनी छोटी चीजों से क्रिप करने लग जाते हैं. आपने कभी इमेजिन करके देखा है? बहुत बार. अब सोचिए, हम किस, पानी ठंडा आ रहा है, पानी गर्म आ रहा है, बाहर ठंड है, लाइट चली गई, मतलब क्रिब्स ऑफ आवर लाइफ, सड़क ठीक नहीं है, ये नहीं है, whatsoever we have. Look at those people who fought at that time, and for whom? For us. हम क्या वो वर्थ भी हैं? Ask these questions from you all. Please अपने आप से पूछिए. I am asking from you all. You ask yourself. तो वो कारगिल जीतना भी आसान नहीं था बच्चों. वहां खड़े होके पता चलता है हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन दोज पीपल. और अगर उन्होंने वो जीत पाया, तो व्हाट वाज दैट आई रियली वांटेड टू. तो मैंने अपने PhD के अंदर अपना टॉपिक सेलेक्ट किया, ऑथेंटिक लीडरशिप. इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक स्टाइल, इट वाज नॉट अ ऑटोक्रेटिक स्टाइल. व्हाट वाज दैट? कि कौन इंसान होते हैं यार जो कहते हैं साहब आप पीछे हट जाइए, मैं आगे जाके देखता हूं. और वो लीडर्स आल्सो जो कहते हैं आप पीछे रहिए साहब, आज मुझे आगे जाके देखने दीजिए. देयर आर लीडर्स हु लीड बाय एग्जांपल. आपने मनोज पांडे, बलवान सिंह, इन सबको देखा है.
आप समझिए, कैप्टन विक्रम बत्रा, व्हाट दे हैड, कुछ तो उनके अंदर पहले था और कुछ फौज ने उनको वो ट्रेनिंग से दे दिया गया। समझिए, तो फौज एक ऐसी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, जब एक बार ज्वाइन कर भी लेते हो ना, मैं कितने, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, आप कहीं भी देखिए, इस इंडिया के अंदर भी देखिए, कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आज कहीं कुछ हो जाए, द मोमेंट आर्मी कम्स, ओ हमें लगता है थिंग्स विल बी सॉर्टेड नाउ, है ना, कंट्रोल में आ ही जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा, दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी दोज पीपल गिव अस। So why not to be a part of this organization? हम क्या सिक्योरिटी लेने के लिए, देने के लिए नहीं है किसी को? तो हमें देनी भी तो है ना बच्चों, लेना लेना कब तक सीखेंगे? If you have those qualities in you, why not to go ahead? Why not to serve this nation? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है? So that's this organization is all about. It gives you that kind of sense of security. ठीक है? आप किसी फौजी को देखिए, ब्यूरो, आप कितने भी, everybody wants to become. I am not against of any service, but फौज के अंदर जो सिखाया जाता है, योर नेशन कम्स फर्स्ट, इन नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे टीच यू। ठीक है? क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जब होता है, करेज क्यों नहीं आता लोगों के अंदर, लोग क्यों बह जाते हैं सिस्टम के साथ, बीट एनी आईएएस ऑफिसर, बट यू सी मैक्सिमम ऑफ द फौजी, दे नेवर, दे हैव अ करेज टू टेक स्टैंड फॉर द राइट, दे ऑलवेज सेज यस माय कंट्री, एंड फॉर ask me when I was a Fauji, I was wearing a uniform, it was so easy for me। ठीक है, ये मुझे ट्रेनिंग दी गई थी, समझाया गया था इस चीज के लिए, my country comes first, then the men I command, after that myself and my family। But now when it comes to my husband and I'm a better half of an infantry soldier, आप सोचिए उसके साथ अब मैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 3 पे हूं। फॉर हिम ऑल्सो हिज कंट्री कम्स फर्स्ट, देन द मेन ही कमांड, एंड वी एज अ फैमिली वी कम एट नंबर 3, विच इज नॉट दैट इजी। फौज ने तो फौजी यूनिफॉर्म पहना के ट्रेनिंग करती थी यार, फौजी बीवी बनने की तो किसी ने ट्रेनिंग भी नहीं की, एंड इट इज नॉट इजी। आज भी जब देर रात फोन आता है तो दिल की धड़कन बैठ जाती है। आई होप पलटन के अंदर सब ठीक हो, सिर्फ एक चीज की दुआ करते हैं कि ये फोन कभी गलत टाइम पे ना बजे और कोई गलत न्यूज सुनने को ना मिले। We just pray for that every daily morning, getting up, because whenever a Paltan is there in the field, in the insurgencies area, in the harsh climatic conditions, whether it is Siachen, Dras, anywhere, we just pray for one simple thing. If we get a call, we just get a call, हाँ भाई सब ठीक है, everything is fine। That's what, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है सुनना और करना, and I think, और हम में से सबके लिए ये होनी चाहिए, because life is so unpredictable। फौज टीचेज यू दीज वैल्यूज, फौज टीचेज यू, और ये सिखाती नहीं है, हमें प्रैक्टिस कराती है हर रोज, तो हम सब लोग इसके अंदर इतने ही हो जाते। यू सी एनी फौजी, आप खुद सोचिए, भीड़ में भी आप किसी फौजी को देख लीजिएगा, 2 मिनट में पहचान लोगे। द मोमेंट अ सोल्जर, द मोमेंट you know a person put those stars on their shoulders as a lieutenant, as a captain, आप कुछ भी देखिए 2 इंच कद अपने आप बढ़ जाता है। क्यों? Because the proud they feel, the pride they take in wearing that uniform, because of that pride। So mark my words, mere bachcho, in case if you are listening to me, this kind of lifestyle has no match with any other organization। You go to any cantonment, you will feel the difference। It is an organization which gives you a handsome salary, but a very good lifestyle where you will lead a happy and satisfying life। आज के टाइम में भाई फिजिकली एक्टिव जो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन रख रही है पूरा टाइम के लिए, what else you want, what else you want। Fine, now coming to how you all can join। Fine, you, so it is a Ramanujan, हमारा जो कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आप वैसी क्रीम देती है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ठीक है, आप सोच के देखिए, तो आधी चीजें वैसी ही आसान हो जाती है तुम लोगों के लिए। when you study over there, the kind of exposure you get it, you guys are the blessed ones। Fine, so how you all can join as an officer, if you want to join, आप किस तरीके से, there are different entry schemes बच्चा। फाइन, अगर आपको 12th के बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आप कॉलेज के बाद जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग के बाद जा सकते हो, आप ग्रेजुएशन के बाद जा, आप मास्टर्स के बाद जा सकते हो, आप लॉ के बाद जा सकते हो, आप एनसीसी, देयर आर एन नंबर, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए जाने का। रास्ते बहुत दिए हैं फौजियों ने। फाइन,
So up when you go and join, you join as an, if you want to go to join as an officer, तो ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे पहले यू गो देयर एज अ लेफ्टिनेंट. आफ्टर ट्रेनिंग आपको 2 स्टार्स मिलते हैं और यू बिकम एन लेफ्टिनेंट. आफ्टर दैट यू, आफ्टर 2 years you become a captain, then you become a major, then you become a lieutenant colonel, after that colonel, then brigadier, major general, lieutenant general and general. So that's the rank structure in army. Basic idea होना चाहिए मेरे बच्चों. पता ही नहीं होता है कर्नल में और कैप्टन में क्या फर्क है. ठीक है, थोड़ा तो अपनी आर्मी के बारे में जानिए. इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन. और ठीक है, जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती हैं, कई बार सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उनके लिए यू स्टिल यू कैन ज्वाइन. वहां पे रिक्रूटमेंट भी होती है जिसको हम भर्ती बोलते हैं. फाइन. भर्ती के लिए आपको क्या होता है, जैसे व्हेन यू हैव टू ज्वाइन एज एन ऑफिसर, तो आपको पहले रिटन क्लियर करना पड़ता है. रिटन क्लियर करने के बाद आपका एसएसबी होता है. एसएसबी होने के बाद आपका मेडिकल होता है. मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. बट अगर आपको एज अ रिक्रूटमेंट इज जस्ट देयर फॉर बॉयज. गर्ल्स के लिए अभी रिक्रूटमेंट सिर्फ मिलिट्री पुलिस, आर्मी मिलिट्री पुलिस जो है ना, सीएमपी के अंदर अभी आई है. ठीक है, गर्ल्स अदरवाइज और यूनिट्स के अंदर रिक्रूट नहीं होती है. बॉयज की रिक्रूटमेंट में पहले आपका फिजिकल होता है. फिजिकल होता है, जो फिजिकल में लड़के सेलेक्ट होते हैं, फिर उनका रिटर्न होता है. रिटर्न के बाद इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. दैट्स हाउ द प्रोसीजर इज देयर. नाउ अब मैं ऑफिसर, सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो लेट मी टेक इट फ्रॉम दैट ओनली. तो मैं आपका जो आज सेशन है, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी एंट्री स्कीम से आप जा सकते हो. इन केस इफ यू आर, आप में से कोई है या आपके भाई बहन है या कोई भी है जो 11th और 12th में है, तो आपकी एनडीए इज वन एंट्री. नाउ एनडीए एंट्री इज ओपन फॉर गर्ल्स ऑल्सो. और आपको फौज में जाने की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, व्हाट ऑल आर द डिफरेंट एंट्रीज, तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए मेरे बच्चों. मेरे पास इंस्टाग्राम पे बच्चों के मैसेज, मैम मेरी इतनी उम्र है, मैं क्या करूं, इतनी उम्र है. बेटा, यू ऑल आर टुडेज जनरेशन. हमसे कितने स्मार्ट हो तुम बच्चे. तो तुम्हें अगर फौज में जाना है तो इतना स्मार्ट तो होना चाहिए. इंफॉर्मेशन कहां से लेनी है. सो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अगर आपको फौज के बारे में चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन. रिक्रूट मतलब आपको कब फॉर्म्स निकल रहे हैं, कैसे फॉर्म्स निकल रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी www.joinindianarmy.nic.in. This is the official website of Indian Army. Go there, see there. Different entry schemes for men is given differently, for women is also given over there. स्टडी इट थॉरोली. पता चल जाएगा. एनडीए के बाद हर फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं. एनडीए के फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं. फाइन. आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज दिया हुआ है 16.5 से 19.5 साल के बीच में. 12th आपको करनी होनी चाहिए. अगर आपको एनडीए के अंदर आर्मी को चूज करना है तो नॉन मेडिकल होना जरूरी नहीं है, फिजिक्स जरूरी नहीं है, ओनली मैथ्स इज कंपलसरी. अगर आपको एनडीए के अंदर एयरफोर्स और नेवी विंग ज्वाइन करना है तो फिजिक्स इज ऑल्सो कंपल्सरी ओवर देयर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हर बार साल में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं एनडीए के. आप फॉर्म भरिए यूपीएससी के थ्रू, रिटन क्लियर कीजिए, फिर आपका एसएसबी आता है. 3 साल अगर आप क्लियर कर लेते हो तो 3 साल आपकी एनडीए खड़कवासला में पुणे के पास है जो आपकी ट्रेनिंग होती है. 1 साल आपकी आईएमए में ट्रेनिंग होती है. उसके बाद टोटल 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में आ जाते हो. एक एंट्री स्कीम होती है, इसको हम बोलते हैं यूपीएससी के थ्रू जाती है एनडीए. सेकेंड ही 10+2 के बाद एक टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है. फाइन. ये भी साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है. इसके अंदर रिटर्न नहीं होता है. आपने अगर फिजिक्स और मैथ्स के साथ, नॉन मेडिकल के साथ अपना किया है तो डायरेक्ट आपकी कट ऑफ के बेसिस पे आपकी कॉल लेटर आती है. फाइन. इसकी ट्रेनिंग 5 साल के लिए गया में होती है, ओटीए गया में. फाइन. सो दैट्स हाउ यू डू इट. ठीक है. और बहुत सारी एंट्री स्कीम्स है. फिर आती है आईएमए, परमानेंट कमीशन. 2 एंट्रीज होती हैं. एक आईएमए के लिए होती है, दैट इज परमानेंट कमीशन. एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो ओटीए चेन्नई के अंदर ट्रेनिंग करते हैं. पेपर आपको सेम देना होता है. यूपीएससी के थ्रू कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं सीडीएस एग्जाम. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम होता है. इसके अंदर 3 पेपर होते हैं. फाइन. 3 पेपर होते हैं. जो लोग आईएमए ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैथ्स कंपलसरी होता है देना. जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, दे कैन लीव द मैथमेटिक्स पेपर एंड देन दे विल ज्वाइन ओटीए चेन्नई एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर. इनकी भी
साल में 2 बार वैकेंसीज निकलती है, CDS 1 करके, CDS 2 करके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जो रिटन क्लियर करते हैं उनका SSB आता है, SSB क्लियर करते हैं फिर मेडिकल होता है, मेडिकल क्लियर होने के बाद सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज का क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। अब क्वालिफिकेशन IMA और इसके लिए graduation in any subject from a recognized university which is requirement। आप चाहे होटल मैनेजमेंट के अंदर करो, चाहे आप किसी के अंदर भी करो, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, नो डिप्लोमा, ओनली डिग्री। इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन एनी from any recognized university, then you all are eligible। graduation चाहे आप engineering के अंदर भी करें, then also you can appear for your CDS and CDS entry। is that clear to everyone? समझ में आ रहा है? और आपको clarification चाहिए तो you go and visit that। उसके बाद एक और entry होती है जिसको हम बोलते हैं JAG entry। ये JAG entry and NCC entry। JAG entry होती है ये आपकी होती है लॉयर्स के लिए, जिन्होंने जो लॉ करते हैं, ठीक है, बैचलर्स ऑफ लॉ कंप्लीट करते हैं, उनके लिए ये स्पेशलिस्ट एंट्री होती है। रिटन नहीं होता है आपका, मेरिट के आपके कट ऑफ के बेसिस पे आपका डायरेक्ट SSB कॉल आता है और आप जाके जैग ब्रांच ही ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जज एडवोकेट जनरल जो फौज के अंदर है, फाइन, वहां की लॉ के आपको करना होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यू गो एंड विजिट इट। देन देयर इज अनदर स्पेशलिस्ट एंट्री जिसको हम बोलते हैं NCC एंट्री। जो बच्चे ग्रेजुएशन के अंदर NCC लेते हैं एंड ऑल दोस हु हैव C अल्फा ग्रेडिंग इन C सर्टिफिकेट, आप समझ रहे हो, आप सब लोगों की भी अलग से वैकेंसीज निकलती हैं, अलग से डायरेक्ट SSB कॉल आता है, रिटन आपको देने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे अभी कोई भी NCC कैडेट मुझे सुन रहा है, बच्चों प्लीज NCC कैडेट्स, अगर आप NCC एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप UPSC एंट्री के लिए भी अप्लाई किया करें रिटन के लिए, बिकॉज NCC की बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं बच्चों। अगर उसकी 10 वैकेंसीज निकल रही है तो CDS की 40 वैकेंसीज होंगी, 50 वैकेंसीज होंगी, आप समझिए देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दोनों एंट्रीज में अप्लाई किया करें हमेशा। और NCC के अंदर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हाई होता है, बच्चे बड़े धुरंधर आते हैं सारे के सारे, वहां पे ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं वो सारे के सारे, तो दैट्स व्हाट यू ऑल नीड टू डू इट। नाउ कमिंग टू डिफरेंट इज, उसके बाद टेक्निकल, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती है, एक SSC टेक्निकल होता है, फिर आपका TGC इंजीनियर्स के लिए होता है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स होता है। सो ये अलग अलग तरीके की एंट्रीज हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मेन का क्लियर हुआ। नाउ कमिंग टू विमेन, now for girls NDA is open। this is the first batch which will be going and joining NDA। so girls, all those who you will be going, so first batch hai, already you guys girls will be breaking that glass। आप लोगों से बहुत high hope होगी, few challenges will also be there, but I'm sure लड़कियों ने हर challenge को pass किया। 1992 में जब first girls recruit हुई थी, the kind of challenges those ladies must have seen it। जब मैं 2006 में कमीशन हुई, मैंने वो challenges नहीं देखे। और आज जो 2021 या 22 या 23 में जो लड़कियां जाएंगी और आर्मी में सर्व करेंगी, चैलेंजेस विल बी मच मोर लेस। नाउ विमेन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट होती जा रही है। वी ऑल आर मेकिंग आवर ओन स्पेस इन इंडियन आर्मी ऑल्सो, जो पहले नहीं था। इट इज टेकिंग टाइम बट ग्रेजुअली वी ऑल आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, फाइन। सो फॉर गर्ल्स UPSC एंट्री इज देयर, जो आपका होता है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। आपके लिए अभी तक सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन है CDS एग्जाम के अंदर, IMA के अंदर अभी नहीं है। बट जब NDA की लड़कियां 3 साल पूरा करके जब चौथे साल में IMA में पहुंचेंगी ट्रेनिंग के लिए, आई एम श्योर तब तक ये वाली एंट्री भी खुल जाएगी, परमानेंट कमीशन वाली, PC वाली, IMA में डायरेक्ट एंट्री। सो राइट नाउ ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की तरह आप जा सकते हैं OTA चेन्नई के अंदर। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसका, वही 19 to 25 ईयर्स तक एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग OTA चेन्नई में होती है एट पार विद द मेल ऑफिसर। 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। इन माय टाइम ट्रेनिंग वाज जस्ट फॉर 6 मंथ्स, फाइन। जो मेल ऑफिसर्स थे उनकी 1 साल चलती थी, हमारी सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग। नाउ द थिंग्स बिल्कुल एट पार होती चली जाती है। गर्ल्स के लिए भी NCC स्पेशल एंट्री है, गर्ल्स के लिए भी JAG एंट्री है जो लॉयर्स के लिए है, गर्ल्स के लिए भी टेक्निकल शॉर्ट सर्विस एंट्री है। सो दीज ऑल एंट्रीज विद NDA आर अवेलेबल फॉर विमेन ऑफिसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट होता है, यू ऑल कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द वेबिनार।
फाइन. नाउ कमिंग टू द रिटन प्रिपरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एनडीए के अंदर मैथ्स 300 मार्क्स का पेपर होता है. दूसरा आपका होता है जर्नल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश 200 मार्क्स का होता है, जनरल नॉलेज 400 मार्क्स का होता है. फाइन. जो भी बच्चे सीडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी 3 पेपर होते हैं सीडीएस के अंदर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स. ऑल दोस हु विल अपीयर इन मैथमेटिक्स पेपर आर एलिजिबल फॉर आईएमए डायरेक्ट एंट्री. ठीक है. जो मैथ्स का पेपर नहीं देते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, दैट इज टू ओटीए. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सारे का सारा सिलेबस इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, पूरे का पूरा एग्जाम पैटर्न. हर एग्जाम पैटर्न के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, एनडीए के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है. तो बहुत ही अच्छे से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए. अभी बहुत ज्यादा आपका कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है इसके अंदर. फाइन. कमिंग टू, अगर एनडीए का एग्जाम है, आपका पेपर 1 मैथ्स का होता है 300 मार्क्स का, जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड. फाइन. और 2.5 घंटे का ये पेपर होता है. एनडीए में जो पेपर 2 होता है उसको जर्नल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका 600 का पेपर होता है, अराउंड 150 क्वेश्चंस आते हैं. अगेन ये भी 2.5 घंटे का पेपर होता है. फाइन. नाउ कमिंग टू योर पेपर, इसमें जो पहला है उसके अंदर फॉर एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स इज गिवन और 0.83, 1/3 नंबर हर जगह नेगेटिव मार्किंग में इसमें कटता है. ठीक है. और अगर आपको तैयारी करनी है बेटा मैथ्स के लिए, कोई भी पेपर अगर आपको तैयारी करनी है, अरिहंत पब्लिकेशंस आर वेरी गुड बुक्स टू स्टार्ट विथ. ठीक है. ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट, जिनको पता ही नहीं है शुरू कहां से करना है. ठीक है बच्चों, शुरू कहां से करना है किसी भी चीज का, अगर आपको स्टार्ट करना है रिटन की तैयारी से. ऑल दो स्टूडेंट्स, तो रिटन अगर एनडीए के बच्चे हैं, सबसे पहले सिलेबस उठाओ, और सीडीएस के भी हैं, प्लीज आप अपना सिलेबस उठाइए. सबसे पहले देखिए, एनडीए वाले बच्चे सुनिए, मैथ्स का क्या सिलेबस है, जर्नल एबिलिटी का क्या सिलेबस है. मैथ्स के लिए आप अपनी अग्रवाल की बुक उठा लीजिए, इट्स वेरी वेल एंड गुड. उसके बाद आप फर्स्ट चैप्टर लिखिए, सब टॉपिक्स लिखिए, पहला चैप्टर उठाइए, उसकी थ्योरी करिए, उससे रिलेटेड 200 ऑब्जेक्टिव टाइप, 200 to 300 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कीजिए. ठीक है. पाथफाइंडर बुक है फॉर एनडीए एंड फॉर सीडीएस, यू ऑल शुड बाय इट फर्स्ट. ठीक है. वो आपको बहुत क्लैरिटी देती है रिटन के सिलेबस की. ठीक है. तो जिन बच्चों को भी तैयारी करनी है उसके बारे में, तो फर्स्ट pick up that books, that is a very very important book. Fine. मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल बहुत अच्छी है. उसके बाद आरएस अग्रवाल कीजिए आप अच्छे से, फिर आप पाथफाइंडर से अपने सारे क्वेश्चंस कीजिए, और एंड में आप अरिहंत के ही सॉल्व्ड जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं, 10 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट लीजिए और उनसे प्रैक्टिस कीजिए. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द जर्नल एबिलिटी, एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स आर गुड. फिर जर्नल स्टडीज के लिए मनोरमा is a very nice book. फिर अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो एसपी बख्शी, रेन एंड मार्टिन, ग्रामर के लिए these are very nice book, even for CDS and even for NDA, दोनों के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं. फाइन. और हर का पहले आप पैटर्न समझिए, कोई मुश्किल नहीं है बेटो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना. ठीक है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको चाहिए सिस्टमैटिक पढ़ाई, नो योर सिलेबस फर्स्ट. सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, सबसे पहले क्या चीज है, उसका सिलेबस पता कीजिए. फाइन. सिलेबस लीजिए, कॉपी उठाइए, कॉपी के फर्स्ट पेज के ऊपर पहले अपने हाथ से लिखिए, what is the syllabus of mathematics, what is the syllabus of English, what is the syllabus of general study. ठीक है. पहले पूरी यूनिट का नाम, फिर सब टॉपिक्स के नाम. फाइन. अब आप उसमें देखिए, अब उसमें से आप देखिए, फॉर एग्जांपल आपके मैथमेटिक्स पेपर होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, सारा. उसके बाद देखिए कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट के ऊपर लगाना है. आप सबके पास अपना 3 देखिए, जिन बच्चों ने 11th 12th अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, जिन बच्चों ने एनडीए के लिए मैं बता रही हूँ या सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छे, उनको ज्यादा मुश्किल नहीं होती है. पर जो टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, बस टाइम पास के लिए कर लिया, जितना हो गया, देखो उनको 6 महीने भी लग सकते हैं तैयारी करने में रिटर्न की, कुछ को 3 महीने में. इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच नॉलेज यू हैव. ठीक है. वी ऑल आर डिफरेंट. तो आपको खुद को पता है आपको कितना आता है. सिलेबस उठाइए, पहले 3 महीने का देखिए, 3 महीने से 1 मंथ का टाइम टेबल बनाइए, 1 मंथ से 1 वीक का बनाइए, 1 वीक से डेली. यू शुड हैव डेली गोल्स कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है. और जैसे ही फर्स्ट, फॉर एग्जांपल आप मैथ्स का लेके चले,
कैलकुलस इज द टॉपिक, कैलकुलस के अंदर जितनी भी थ्योरम्स है जो भी है वो करने के बाद मेक अ टिक मार्क, उसको लाल पेन से टिक कीजिए कि ये मैं थ्योरी भी कर चुका हूं और इसके 300 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए। जब आप पूरे सिलेबस को ऐसे टिक करते चले जाएंगे, यू विल हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। ओ माय गॉड, एटलीस्ट मैंने ये सिलेबस अच्छे से कर लिया। जब एक बार पूरा सिलेबस हो जाता है, ठीक है, आपने रिटन की अच्छे से तैयारी की, थ्योरी किया, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन किए 200 से लेके 300 तक, जब हर चैप्टर के हर टॉपिक के ये हो जाते हैं, एट द एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट, आपको पता होगा। उसके बाद एक किताब और उठाइए जिसमें से सारे ऑब्जेक्टिव टाइप कीजिए, फिर उठाइए अपने सॉल्व्ड पेपर्स। जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे बेटा, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डिवोट करेंगे, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में, आपकी वीकनेस किस सब्जेक्ट के अंदर है, 120 डेज लेके चलो हर सब्जेक्ट की तैयारी के, अगर आप मान के चलो, ठीक है, और 3 महीने के अंदर आपको पता होना है कि आपको कहां कितना डिवोट। बच्चों मेरी बात सुनो, सारे के सारे जितने भी ना, आप में से कितने सारे बच्चे जिनको ये लगता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना, हमारी जनरेशन ना, अगर इफ आई आस्क यू ना बेटा तैयारी कर, टाइम टाइम ना, ऐसे लगता है आपको 24 घंटे कम है एक दिन के अंदर। 24 की जगह अगर मैं तुम्हें 48 भी दे दूंगी ना, फिर भी कम ही रहेंगे, क्योंकि जब टाइम बर्बाद करने पे आ जाता है तो हमें पता ही नहीं होता हम कहां कहां कर रहे हैं। आप सोचिए, रतन टाटा हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, ये जितने भी हैं, इनके पास भी 24 ही घंटे है ना यार। ये इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं कि हमसे सिर्फ अपनी पढ़ाई भी मैनेज नहीं हो रही है। और कौन सी, किसकी मम्मा तुम्हें कहती है, मम्मा को बच्चा पढ़ता हुआ नजर आ जाए तो मम्मा के लिए ड्रीम कम ट्रू है? नहीं, मम्मा तो आसपास भी नहीं भटकेगी फिर तुम्हारे, हो हंस तो मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, नहीं नहीं बेटा मैं यही ले आती हूँ, यही ले आती हूँ। मम्मा का इतना प्यार जाग के आ जाता है। बट तुम बेड पे एक पोज के अंदर नेटफ्लिक्स के जब चैनल बार बार चेंज करे जाओगे, और जब उस मोबाइल की बैटरी दिन में 4 बार चार्ज करोगे, बेचारी मम्मा क्या करे यार। फिर उसका बाद तुम्हें लगता है ओ माय गॉड मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। अभी लेटेस्ट में एक रिसर्च पढ़ रही थी विच सेज एवरेज यंगस्टर आज के टाइम में 7 आवर्स स्क्रीन टाइम। बेटा ये चश्मे ऐसे ही नहीं लग रहे हैं, ठीक है, नहीं उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 7 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम। और उसके बाद कहते मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे करें? बेटा अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है। 24 घंटे हैं, उस घंटों को कहां कहां टाइम डिवोट कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आर गोइंग टू हैव, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू हैव। मार्क माय वर्ड्स, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर वो घंटे आपके टाइम फोकस ऑन द थिंग्स विच मैटर्स टू यू इन अ डे, उन 24 घंटों में से उन चीजों पे फोकस कीजिए जो आपको आपके गोल के पास लेके जा रही है। आप समझ रहे हो, है ना? एसएसबी क्लियर करना है, फौज में जाना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, जो करना है भाई तुम्हारी मर्जी, यहां जाना है। अब वहां जाने के लिए 1 स्टेप 2 स्टेप, रिटन क्लियर करना, सब्जेक्ट पढ़ने, क्या करना, जो लगता है ना आपको वो बच्चा तो बहुत है लकी रह गया। लकी कोई नहीं होता बेटा, लक 1 या 2 बार काम करता है, उसके बाद हार्ड वर्क होता है, ठीक है। वो बच्चे कहाँ कितनी एनर्जी लगा रहे हैं वो समझिए। वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके मम्मी को दे देते हैं, इसको अलमारी में रख दो, व्हेन आई एम स्टडिंग मींस आई एम स्टडिंग। अब आप आज बैठ के अपना एक बार टाइम का ऑडिट कर लेना मेरे कहने से, जस्ट डू इट एंड देन यू विल रियलाइज इट। जस्ट ऑडिट योर टाइम वंस कि हाउ मच टाइम आई एम डिवोटिंग टू व्हाट ऑल एक्टिविटीज इन अ डे। फिर उसमें से जो भी एक्टिविटी है आपको आपके गोल के पास नहीं लेके जा रही है ना, आपका जो अल्टीमेट गोल है, व्हाट एवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, व्हाटसोएवर इज, अगर वो एक्टिविटी उसकी तरफ नहीं लेके जा रही है तो उस एक्टिविटी का टाइम कम करते चले जाओ मेरे बच्चों, धीरे धीरे। दैट्स द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर दैट। और कोई जादू का चूरन नहीं है। अगर मैं खिला दूं तुम लोगों को, काश होता तो मैं सच्ची में खिला देती, कोई मैजिक बैंड होता तो मैं सच्ची में घुमा देती। Oh my God, today, tomorrow you will become this. वो तथास्तु सिर्फ नाटकों में ही होते हैं, ठीक है। वो हमारी जो रामायण और वो चलती आ रही है, तथास्तु करते ही सब कुछ सबको सब सारे वर प्रदान हो जाते हैं। ये तथास्तु बेटा आपका हार्डवर्क है, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जहां आप फोकस कर रहे हो। ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। आर यू गेटिंग मी ऑल ऑफ यू? तो हमारे हाथ में जब हमारी जिंदगी है यार, क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? बाद में रोने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है।
कुछ मिलेगा। आप खुद सोच के देखो, अगर आप लोगों ने ये आने वाले 4 से 5 साल एफर्ट्स लगा लिए, कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। अगर आपको अपना फोकस क्लियर है, अगर आप उसकी तरफ अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए। मार्क माय वर्ड्स, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क मेरे बच्चों। शॉर्टकट जिंदगी में शॉर्टकट लेना ही सिखाते हैं, फिर लाइफ भी शॉर्टकट ही हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत किसी ने चीज बोली, आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ी घूम रही थी, स्टे विद द पीपल, ऐसे लोगों के साथ रहो whose eyes lights up when they see you। आप समझ रहे हो? क्यों नेगेटिव लोगों के साथ रह के नेगेटिविटी के अंदर घुसना? ऐसे दोस्त बनाओ जिनकी आंखों के अंदर चमक आ जाए when they look at you, और हमें पता चल जाता है कौन हमसे खुश है, कौन हमसे खुश नहीं है। सेकंड, अगर कहीं भी जर्नी पे आपको सबसे जल्दी पहुंचना है, उसका तरीका क्या है? स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। धीरे धीरे एक एक कदम लेते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, रुकिए मत। जब भी फेलियर्स आते हैं उनसे कुछ सीखिए, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। ऑल योर लाइफ विल बी क्लियर। कोई मुश्किल नहीं होने वाली है किसी को। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद से हम एफर्ट्स लगाते हैं 50%, उम्मीद करते हैं 100%। बच्चों, एफर्ट्स लगाने हैं 150%, 100% अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। अपने आप से पूछिए, हर आंसर आपके पास होगा, आपका क्यों नहीं हुआ। जब कहीं भी फेलियर मिलता है, डोंट ब्लेम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इट most of the time. What we do for all our failures, whatsoever happens, we blame the rest of the world except ourselves. Can you control? No. What is in your control? You yourself. Situations will keep on changing, ठीक है? challenges आते रहेंगे। उन challenges के अंदर आपको कैसे react करना है, that is there in your control, है ना? challenges थोड़ी मेरे कंट्रोल में, वो तो आएंगे और सबकी लाइफ में आते और जाते चले ही जाएंगे, ठीक है? सो नीड नॉट टू वरी। टाइम कीजिए सारे। प्रिपेयर अ स्टडी चार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिन पूरा दिन सुबह होता है, शाम होता है, पता ही नहीं चलता कहां चला गया। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं आज करना क्या था। मम्मी ने कह दिया उठो तो उठ गए, मैम ने कहा असाइनमेंट सबमिट कर दो तो सबमिट कर दी, है ना? जो धक्का दे देते हैं वहीं चल पड़ते हैं, और वैसे ही पूरा दिन निकल जाता है सबके कहने से। अपना दिन कभी हमने तैयार नहीं किया। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इट इन अ डे। यू डू इट वंस एंड देन यू से इट। यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर टाइम, यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग योर डे। अभी डे तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जब सर पे आ गई हमने वो कर लिया, और all these things gives you stress only, nothing else, nothing else. And focus on your strength, very very important. Most of the time हम अपनी weaknesses का पता होना चाहिए, धीरे धीरे कोशिश करा करो उसको ओवरकम करने की, बट स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम किया करो, बैंक अपॉन देम। फाइन, मेहनत कीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस फॉर एवरी डैम थिंग, बी इट लर्निंग एनी स्किल, चाहे वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो। जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे उसी में परफेक्ट होते चले जाओगे। आजकल प्रैक्टिस किस चीज की करते हो पूरा दिन? आई कॉल इट 3 कैंसर्स ऑफ योर लाइफ, 3 C's: कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंप्लेन। इसी में परफेक्ट है हम, नहीं? ऑल द टाइम वी वांट टू कंपेयर आवरसेल्व्स। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। उसके पास iPhone 13 Pro है, मेरे पास तो अभी 10 ही है। उसके पास नाइकी है, मेरे पास तो ये नहीं है। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है ना? उसकी मम्मी अच्छी है, मेरी मम्मी अच्छी नहीं है। अदरवाइज तो मेरे पेरेंट्स ऐसे होते तो मैं पता नहीं क्या कर जाते। अरे किसी ने कुछ नहीं करना। These are just the excuses which you are giving it to yourself, nothing else. Second, complain for every damn thing and criticize because you don't want to take the responsibilities of your own failure. So you want to blame the rest of the world for everything which is happening in your life, which is not right. And you are practicing it daily. Start practicing good thoughts. Start taking responsibility of your own actions. Why not to talk about health? Why not to talk about happiness? Why not to talk about prosperity? दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी बच्चों. This world is not that bad. ये जो लाइफ है ना, ये जो दुनिया है, इट इज योर मिरर. आप जैसे हो आपको वैसी नजर आएगी. अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको ऐसा लगता है सारी दुनिया ही गंदी है, प्लीज सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखो. What is making you feel like that? Genuinely लोग अच्छे ही होते हैं.
थोड़े से एक्सपीरियंसेस बुरे होने से इंसान सही या गलत नहीं होते। समझिए इस चीज को, बहुत जरूरी है बच्चों, यंग जनरेशन को ये समझना। लाइफ इज अ इको। बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी है, एक मैंने पढ़ी थी, ठीक है। एक बच्चा होता है, हाँ, वो अपनी मम्मा से लड़के जाता है, ठीक है, मम्मा से लड़ाई होती है, वैली में रह रहा होता है, वहां जाके जोर से चिल्लाता है वैली के अंदर ना, आई हेट यू। उधर से आवाज आती है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, इको के। डर जाता है छोटा सा बच्चा, वापस आता है भाग के मम्मा के पास, मम्मा वैली के अंदर कोई आ गया है और वो मेरे से बहुत नफरत करता है। आई डोंट नो मम्मा, वो तो ही, मैंने तो एक ही बार कहा था, उसने 10 बार मुझे कहा, ही हेट्स मी सो मच, सो बैडली। मम्मा वाज लाइक, इट्स ओके बेटा। मम्मा समझ जाती है। मम्मा कहती है, इस बार जाके बोलना आई लव यू। फाइन। बॉय जाता है, जोर से चिल्लाता आई लव यू, एंड ही गेट बैक द सेम थिंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो दिस वर्ल्ड इज व्हाट इज इको। आप जो दोगे आपको वही मिलेगा। अब मोहब्बत, प्यार और इज्जत किसी को देके देखिए, वापसी में वही मिलेगी। एटीट्यूड किसी को देके देखिए, 4 गुना मल्टीप्लाई होके मिलेगा, किसी में कम नहीं है। सब अपने घर के शेर है, शेर क्या, सवा शेर शेर है, किसी से पूछ के तो देखो। सो व्हाई टू स्प्रेड दिस नेगेटिविटी, है ना। अच्छा बन के, अच्छा एक किसी को स्माइल देके देखो, स्माइल मिलेगी। बट हमें वो भी नहीं देनी है, पैसे लग रहे, किसी के नहीं लग रहे यार, किसी के नहीं लग रहे। इतनी नेगेटिविटी को हम प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं बिकॉज कंडीशनिंग हो गई है। कंडीशनिंग किस चीज की हो गई है? टू फाइंड द फॉल्ट्स इन द पीपल। इफ देयर इज अ सिचुएशन, इमीडिएटली चेंज योर माइंडसेट बेटा, कि उसके अंदर पॉजिटिव क्या है उस टाइम। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको कुछ ना कुछ अच्छाई भी, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। अच्छाई ढूंढोगे अच्छाई मिलेगी, बुराई ढूंढोगे बुराई मिलेगी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट यू आर लुकिंग एट। So start looking at good things, practice it, fine. उसके बाद आता है, अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हो, देन कमिंग टू एसएसबी। मैं मोटा मोटा बताती हूँ। जो एसएसबी होता है बेटा, इसको बोला, एसएसबी 3 स्टेजेस के अंदर होता है, फाइन। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट, वहां जाने के बाद, ठीक है। जो बच्चे रिटन क्लियर करते हैं उनका एसएसबी आता है, ठीक है। फर्स्ट होती है आपकी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के अंदर आपको एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया जाता है सब बच्चों को, जो बेसिक वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ यू क्लियर दैट, फिर आपका सेकंड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, पीपीडीटी। ये स्क्रीनिंग 1, स्टेज 1 के अंदर होता है। पीपीडीटी के अंदर क्या होता है? आपको एक हेजी पिक्चर दिखाई जाती है स्क्रीन के ऊपर, उसको देख के आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। यू हैव टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन दैट परसीव्ड पिक्चर। अब वो किस चीज के बेसिस पे लिखते हो? तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने जो ये टेस्ट बनाया है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक के बेस पे बनाया है। वो क्या कहते हैं कि जो इंसान का अनकॉन्शियस माइंड है उससे वो स्टोरी लिखते हैं। टाइम लिमिट के अंदर 4 मिनट आपको दिए जाते हैं, 4 मिनट में आपको एक स्टोरी लिखते हैं। उसमें आप क्या लिखते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं डॉग को देखती हूँ, मुझे डॉग को देखते ही डर लगता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको डॉग को देख के प्यार आता है? बहुत सारे लोग होंगे, है ना। कुछ को प्यार आता है। देखो प्रियल इतनी खुश हो जाती है डॉग्स को देख के, नाम सुन के इतनी खुश है, और मैं डर जाती हूँ। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस वी हैड। आर यू गेटिंग मी? तो कोई भी चीज बच्चों आप परसीव कैसे करते हो? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। सिमिलरली फौज के अंदर जितनी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है वो इसी बेसिस पे होती है। दे assess you from your unconscious mind कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपकी पर्सनालिटी कैसी बनी है, कि आप नेगेटिव तो नहीं हो बहुत ज्यादा, बहुत चीजों के बारे में नेगेटिव तो नहीं सोचते। फौज के अंदर दे आर लुकिंग फॉर अ हैप्पी, पॉजिटिव, हेल्दी पर्सनालिटी। दैट्स इट। उन्हें खुश लोग चाहिए, अडेप्टेबल लोग चाहिए, फाइन। तो ऐसे आप जब वो स्टोरी लिखते हो, उसके बाद वही स्टोरी आपको अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस करनी पड़ती है 10 से 15 मिनट के लिए, और एक कंक्लूजन पे आना होता है। फॉर एग्जांपल 100-120 बच्चे पहुंचते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो उसमें से 40 या 50 बच्चे रह जाते हैं सिर्फ, जो स्क्रीन इन होते हैं। जो लोग स्क्रीन इन हो जाते हैं उनके फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है फॉर नेक्स्ट 4 days एट एसएसबी सेंटर। सेकेंड डे आपका, ठीक है, जो लोग हो गए हैं, सेकेंड डे आपका वहां पे जाके क्या होता है? सबसे पहले होती है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे टेस्ट आपके किस चीज के ऊपर होते हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है वो होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसके अंदर आपको 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं बेस्ड अपॉन द पिक्चर्स।
आपको एक पिक्चर दिखाएंगे 30 सेकंड के लिए, 4 मिनट देंगे, आपको एक स्टोरी लिखनी है। फिर एक पिक्चर दिखाएंगे 30 सेकंड के लिए, 4 मिनट देंगे, आपको एक स्टोरी लिखनी है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट 12 स्टोरीज। फिर आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया जाता है जिसको वैट बोलते हैं। 15 सेकंड के लिए एक वर्ड दिखाया जाता है, 15 सेकंड के अंदर ही आपको उसके ऊपर फर्स्ट सेंटेंस बनाना होता है जो आपके माइंड के अंदर आया। ऐसे करके आपको वो 60 वर्ड्स दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। थर्ड जो आपका टेस्ट होता है उसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसके अंदर आपको 60 सिचुएशंस दी जाती है और आपसे पूछा जाता है हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है जिसमें आपको लिखना होता है व्हाट योर पेरेंट थिंक्स अबाउट यू, what your teachers thinks about you, what your friends thinks about you, what you think about yourself। ऐसे करके आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। फिर आपको बाहर ग्रुप में लेके जाया जाता है जिसको हम GTO बोलते हैं। ग्रुप के ये फील्ड के अंदर होती है। अब देखा जाता है आप ग्रुप में अंदर कैसे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर वो क्या देखते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड को देखते हैं। उसमें आपको मुंह से एक अक्षर भी नहीं निकालना है, हर चीज आपकी राइटिंग स्किल से आपकी चेक हो जाती है। GTO के अंदर दे असेस यू इन अ ग्रुप कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, वहां पे लेक्चरेट होगा, फिर आपको ऑब्स्टेकल्स दिए जाएंगे, आपको पूरे ग्रुप के अंदर वो ऑब्स्टेकल क्रॉस करने हैं। ऐसे करके वो 9 टास्क देते हैं आप लोगों को, फाइन, जिसमें ऑब्स्टेकल्स होते हैं और आपको क्रॉस करने होते हैं, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। इस तरह से आप GTO क्लियर, वहां पे आपका कॉन्शियस माइंड, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो चीज चेक होती है। तीसरा आपका होता है इंपॉर्टेंट इज योर पर्सनल इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू विद द ऑफिसर ओवर देयर। दे आस्क यू अबाउट यू। अब नाउ कमिंग टू SSB बच्चों, SSB से बहुत बच्चों को डर लगता है एंड आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ऑन SSB ओनली दीज डेज, फाइन। सो बेसिकली मैं SSB का, देखिए बेटा, SSB ना कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है। सबसे पहली बात, व्हाट इट इज अ पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट। वो आपसे पूछ रहे हैं डू यू हैव इट इन यू। अब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपके बारे में पूछ रहे हैं ना, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपकी हिस्ट्री के बारे में। कंफ्यूजन किस चीज को लेके है, डर किस चीज को लेके है। सबसे पहला डर, या तो आप झूठ बोल रहे हो या कोई चीज छुपा रहे हो, उस चीज का होना चाहिए व्हाई, whether it is there in you or it's not there in you। तो मैं बच्चों से हमेशा ही बोलती हूँ SSB से घबराने की जरूरत नहीं है, और एक बार ट्राई तो सबको करना चाहिए। ये इतना खूबसूरत प्रोसीजर है। अगर SSB नहीं भी क्लियर होता है ना, आपको अपने बारे में इतनी अवेयरनेस हो जाती है जो आपको, अगर मैं आज आप लोगों से पूछूं आलिया भट्ट आज क्या कर रही है, रणवीर सिंह क्या कर रहा है, आपको सबकी जिंदगी का सब कुछ पता है। इफ आई आस्क यू अबाउट यू, nobody is aware। हम कितनी बार दिन में बैठ के सिर्फ अपने बारे में कितनी बार अपने हाथ से आपने अपने गोल्स लिखे हैं, अपनी अवेयरनेस लिखी है। सो दिस SSB इज अ प्रोसीजर जहां आपको इतनी ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस होती है। तो इट इज जस्ट नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन जस्ट टू गेट इन टू आर्मी, बट आपको सच बता रही हूं, इतनी ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है इन योर कमिंग लाइफ ऑल्सो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। If coming back to OLQs, सारे बच्चे बोलते हैं OLQs हो यार, OLQs ऐसे पढ़ के याद नहीं होते बेटा। अगर मोटा मोटा फौज के बारे में पूछो व्हाट काइंड ऑफ, उन्हें चाहिए एक बेसिक इंटेलिजेंस का आदमी, नॉर्मल इंटेलिजेंस, बेसिक, जिनको क्वेश्चन समझ में आते हैं और समझा सकते हैं, इतनी बेसिक इंटेलिजेंस। दैट इज व्हाई दे आर जस्ट चेकिंग द टेस्ट। और SSB के अंदर वो आपकी कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं यार। जनरल नॉलेज का मतलब क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, करंट। अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी, आपको ये नहीं पता आपके देश के अंदर क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी फार्म बिल होके हटा है, आप सोच के देखिए, ठीक है, एंड यू बिलोंग टू अ फार्मर्स फैमिली एंड स्टिल यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फार्म बिल, तो इसका क्या मतलब है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं और आपकी जीके कमजोर है। इसका मतलब है आपकी पर्सनैलिटी में कोई कमी है, कि यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर करंट अफेयर, व्हाट इज हैपनिंग इन योर कंट्री। आप समझिए, तो इसको करंट अफेयर्स को कभी भी SSB में ना कुछ मार्क किया और उस पे नहीं, यार इट इज द नॉर्मल थिंग। दिन में 15 से 20 मिनट भी न्यूज सुन लोगे ना, इतने अवेयर भी हो जाओगे, दैट्स मोर देन एनफ। सेकंड, दे आर लुकिंग फॉर अडेप्टेबिलिटी। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को कहीं गर्मी लगती है, कहीं ठंड लगती है, क्लास में भी टीचर कह दे यहां से नहीं उस क्लासरूम के अंदर जाना, उनका मुंह उसमें भी बन जाता है। अगर उनकी क्लासरूम शिफ्ट भी कर दो तो ओ माय गॉड, हम वहां तक कैसे जाएंगे, व्हाई, हमारी क्लास तो यही होती थी हमेशा। दोस किड्स आर नॉट मेंट टू बी इन फौज।
अब आप देख लो जो -40 के अंदर भी पड़ा है वो 50 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर भी रहते हैं. आर यू गेटिंग मी? अडेप्टेबिलिटी इन एवरी डैम सेंस आपको आनी चाहिए. वो आपको कहीं छोड़ दो, आप वहीं एडजस्ट हो जाओ. बूढ़ों के साथ छोड़ दिया, जवान के साथ छोड़ दिया, बच्चों के साथ छोड़ दिया, है ना, भीड़ में गांव में छोड़ दिया, गांव जैसे हो गए, कहीं छोड़ दो. अडेप्टेबिलिटी, दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न इफ यू रियली वांट टू जॉइन दिस टीम ऑर्गेनाइजेशन. और बेटा ये कोई किताब नहीं सिखाएगी, ये ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हम जैसों ने कहां सीख ली? स्पोर्ट्स से. मैं सच कह रही हूँ, हमारे टाइम के अंदर जब हम टूर्नामेंट्स खेलने जाते थे, अपना गद्दा रजाई साथ लेके जाते थे स्कूल के अंदर, क्लास में लगाना पड़ता था. वॉशरूम साफ नहीं होता था तो खुद करके ताला लगा देते थे. बाद में ओ माय गॉड ये क्लीन रहेगा हमारे लिए. सो हमने हर चीज, दैट्स द अडेप्टेबिलिटी यू ऑल नीड टू लर्न. सेकेंड, इंटीग्रिटी. दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन दिस. नो कॉम्प्रोमाइज. तो बच्चों, फौज में एसएसबी अगर देना है तो स्टे ऑनेस्ट. नो वन इज परफेक्ट. एवरीबडी नोज. जो वहां तुम्हें असेस कर रहे हैं वो बहुत है, हर को पता है. नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट यार. पता क्या होना चाहिए? अपनी वीकनेस पता करके, एक्सेप्ट करके, एंड दीज आर द वेज आई एम इंप्रूविंग इट ऑन. ये करना है आपको एसएसबी के अंदर. आर यू गेटिंग मी? ऑनेस्ट रहिए. ये नहीं आता तो नहीं आता भाई, उसमें झूठ बोल के करना. देखिए एसएसबी में देयर इज नो राइट आंसर, देयर इज नो रॉन्ग आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आर डिफरेंट, यू ऑल विल बी. अगर राइट रॉन्ग होते तो वो 5 दिन वहां बर्बाद नहीं करते, सरकार इतना पैसा नहीं लगाती. ऑल 3 assessors are assessing you. अगर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर सेम ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं, जीटीओ के अंदर सेम चीजें बोल के आ रहे हो, और फाइनल इंटरव्यू के अंदर सेम, अगर वो तीनों मैच कर रहे हैं, यू हैव डन वेल इन एसएसबी. और अगर वो तीनों, चाहे आपने कितनी अच्छी अंग्रेजी बोली हो, अगर वो तीनों मैच नहीं कर रहे हैं, डूम्ड. It means you are lying at some place which is not accepted. So integrity. आज आपने असाइनमेंट क्यों नहीं करी? इमीडिएट बहाना मुंह पे ऊपर रखा होता है. यार इतनी अगर हिम्मत नहीं है कि एक्सेप्ट कर लो, मैम नहीं करी, भूल गए. Whatsoever, practice it. Very important. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा. इंटेलिजेंस बेसिक, अडेप्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी विच इज रिक्वायर्ड, फ्यू लीडरशिप स्किल्स, करेज आपके अंदर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. बेटा एवरीथिंग, दिमाग से आप कितने अच्छे हो कुछ भी, अगर आप बोल के नहीं बता सकते, लिख के नहीं बता सकते, फौज में 2 ही तरीके से आपसे पूछा जाएगा एसएसबी के अंदर. आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स. और कम्युनिकेशन स्किल्स का बच्चों सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, समझ जाओ. कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वर्ड्स ओनली प्ले 7% रोल. अगर मैं यही सेशन आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊं तो, so words only play 7% role. So that's how you all have to prepare for your next SSB, and that's how. तुम में से कितने बच्चे अभी तक छोड़ के चले गए होते ये सेशन? नहीं. So the way I talk, your voice modulation, your facial expressions, your gestures, everything is a part of this. तो अंग्रेजी प्रैक्टिस तो करो ही करो, साथ में अपनी लैंग्वेज के अंदर start expressing yourself. Work upon that also. That is also a very important part. तो ये बहुत सारी चीजें हैं बच्चों आपको जिसमें हेल्प करती है, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हेल्प करती है. व्हाट दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर यू. फाइन. उसके बाद आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है. आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आपको पूछ सकते हो. इन केस एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, आई एम SGP प्रोग्राम मैं चलाती हूँ, हर महीने कोशिश करती हूँ एक चलाने का. दे आर बेसिकली आई ट्रेन स्टूडेंट एंड आई डोंट ट्रेन देम. भाई मुझे ऐसा लगता है इंटरनेट के ऊपर और किताबों में सब कुछ अवेलेबल है. क्या होना है वहां पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में? क्या होना है? मोर इज बिल्डिंग योर OLQs. पॉजिटिव स्टोरी लिखनी है, जब तक पॉजिटिव नहीं होगे कितना लिख लोगे? You first need to practice that positive thinking. First need to practice those skills in your day-to-day life. Your communication skills, your time management skills, your delegation. कितनी important है management skills के अंदर? Interpersonal skills, building a pleasing personality. कुछ लोग भीड़ के अंदर अलग से ही नजर आते हैं. जो चेहरे के अंदर नूर होता है उनके, आप समझिए वो भीड़ में अलग से पहचाना जाता है बच्चा. So practicing all those skills in your daily life is very, very important. And that's what I do in my SSB guidance program. कोई कोचिंग आपको SSB क्लियर नहीं करा सकती. गाइडेंस हम दे सकते हैं बच्चों, प्रैक्टिस तुम्हें करना है डेली. और अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करोगे, अपने OLQs पे काम नहीं करोगे, कितनी स्टोरी लिख के चले जाओ अंग्रेजी के अंदर अच्छी, कितना कुछ, वो कहीं ना कहीं जरूर पकड़े जाओगे.
तो जेन्युइनली एक अच्छा इंसान ढूंढ रहे हैं। अगर आप अपने रिश्तों में अच्छे हो, रिलेशनशिप्स में अच्छे हो, पहले दूसरों को रखते हो अपने से पहले, बिल्कुल सेल्फलेस हो, सेल्फिश नहीं हो, ठीक है, अपने आप। हमने कभी कोचिंग नहीं ली थी, हमारे टाइम पे गूगल बाबा नहीं होता था। व्हेन वी हैड गॉन, वी ऑल क्लियर्ड। हाउ डिड? बिकॉज वी वर प्रैक्टिसिंग इट डेली। कुछ बच्चों के लिए अंदर ऑलरेडी होता है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पोर्ट्स से सीख लेते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से सीख लेते हैं, ऑलरेडी पोजीशंस होती है उनके पास बहुत सारी, तो बहुत सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल कुछ डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, कॉलेज फेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे। इफ यू कैन लर्न ऑन ग्राउंड, नथिंग कैन टीच यू मोर देन दैट। तभी मैं बच्चों को कहती हूँ 11th 12th के अंदर ही एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम्स जैसी गाइडेंस ले लेनी चाहिए। बिकॉज आप 2 महीने के अंदर थोड़ी ना, 2 महीने बाद मेरा एसएसबी है मैम, आप मुझे ट्रेन करा दो। भाई कैसे ट्रेन करा सकती हो 2 महीने के अंदर? सोच के देखो। 2 महीने में किसी की या तो आप ऑलरेडी आपके अंदर थोड़ा बहुत है तो इट्स स्टिल फाइन, यू कैन रिफॉर्म इट, बट 2 महीने के अंदर यू कांट चेंज योर पर्सनालिटी। यू रियली नीड टू वर्क ऑन ग्राउंड। तो 11th 12th के अंदर बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाट फौज इज लुकिंग फॉर, सो दैट यू हैव टाइम इन कमिंग टाइम, 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहोगे इन स्किल्स को, अपने आप बन जाएगी। और एसएसबी के लिए प्लीज किसी को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है फौज के लिए कि मैम हम 1 साल बैठ के तैयारी करेंगे। भाई तैयारी इंसानों के साथ करनी है, तो चाहे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कॉलेज के अंदर हो, वही तैयारी होगी व्हेन यू आर विद द पीपल। फाइन। अकेला बैठ के कमरे में तैयारी नहीं होती है फौज की, एसएसबी की। फाइन। नाउ विल टेक द क्वेश्चंस। आई एम सो सॉरी, आई थिंक ना मैं लंबा हो जाते हैं सेशंस ना ऐसे वाले, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। फाइन, तो आई जस्ट कम टू दैट पार्ट। There is one question, Priyal. Ma'am, like Supreme Court told that women have permanent commission. Was that for CDS? Yes, that was for CDS. SSC, Short Service Commission. हाँ, women can opt for, अभी तक women जो ऑफिसर्स हैं they can't go to the fighting arms, तो वो सर्विसेज के अंदर है, ठीक है। You all can go ASC, Supply Corps, Ordnance, Int Corps, Education Corps, then your signals, engineers and Army Air Defense also. Fine, 8 arms हैं जिनके अंदर अभी जा सकती है। Clear? मैम व्हाट यू वर सेइंग दैट टेक्निकल रिक्रूटमेंट, हाँ जो टेक्निकल रिक्रूटमेंट होती है बेटा वो आपकी इंजीनियरिंग के मार्क्स के बेसिस के ऊपर होती है। उसमें आपको यूपीएससी का सीडीएस पेपर नहीं देना होता, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हो तो आपका डायरेक्ट एसएसबी कॉल आ जाता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम इट इज नेसेसरी टू सिंग टैंट स्टोरीज विद, यस ऑब्वियसली। अब आप स्टोरीज का मतलब क्या है बेटा, देखो वो प्रोजेक्टिव टेक्निक, जब टैट आप थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट लिख रहे हो, व्हाट दे आर लुकिंग इन, आपको जानना चाह रहे हैं ना वो क्यों ले रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर वो ट्रेड्स और क्वालिटीज हैं या नहीं। अगर आप वो अपनी स्टोरीज में नहीं दिखा पा रहे हो, तो जब भी अपनी स्टोरीज लिख रहे हो बच्चों, जो सेंट्रल कैरेक्टर हो वो आप हो। तभी मैं कहती हूँ स्टोरीज जब भी आप टैट की प्रैक्टिस करो, वन थिंग ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि यू डोंट रीड स्टोरीज फ्रॉम बुक, बिकॉज जब आप एक बार स्टोरीज किताबों से पढ़ लेते हो, इंटरनेट से पढ़ लेते हो बच्चों, इट स्टेज इन योर अनकॉन्शियस माइंड। और जब टाइम प्रेशर डालता है तुम्हारे ऊपर, जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो जो स्टोरीज तुमने पढ़ी होती है, तुम ना चाहते हुए भी वही स्टोरीज लिख के आते हो। और जब तुम वो स्टोरीज लिखते हो, वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। बिकॉज मेरे जैसा साइकोलॉजिस्ट होता है, मुझे कितना मुश्किल लगता है यार, 4 बच्चों ने सेम स्टोरी लिखी है पता लगाने में। टेल मी कितना मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है वो इंटरनेट आपके पास ही है? वो इंटरनेट सबके पास है, वो किताबें सबके पास है। तो नेवर एवर, प्लीज ऑलवेज राइट अबाउट योर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस इन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू रियली नीड टू प्रैक्टिस। Fine, write about you. They want to know you in psychological testing कि आपके अंदर वो OLQs traits हैं या नहीं। Show your management skills in that. ठीक है, दिखाइए आप अपने बारे में कि this is how I handle situation. Clear? समझ में आया बेटा? Fine, yes. Daily सबसे पहले पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करो। जब भी कोई सिचुएशन होती है, मम्मी डांट लगाती है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आती है, सी द बेटर पार्ट ऑफ इट। प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम ढूंढना बंद करो। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट योर मॉर्निंग। फौज इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। इफ यू कैन नॉट डिसिप्लिन योर लाइफ, यू वोंट बी एबल टू गो इनटू द फौज।
Forge is more about your mental stamina. Start getting up early in the morning. Start, ये सारी चीजें धीरे, लोगों से मिलना शुरू करो, लोगों से बातें करना शुरू करो, घर में रौनक खिलाना शुरू करो. जब ग्रुप के अंदर बैठे तो लगे हाँ ये बच्चा तो ग्रुप की जान है. आप समझिए, दे नीड अ एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, जिसको जिंदगी जीनी आती है. कहीं छोड़ दिया, कुछ ना कुछ तो मजा वो कर ही लेंगे, है ना. कुछ बच्चे होते हैं कैंटीन के अंदर भी बैठते हैं तो भीड़ जमा होती चली जाती है. वाह वाह यार, वो बैठे उसके साथ बैठ के ना मजा ही आ जाता है. ऐसा बंदा बनने की जरूरत है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आ गया उठ के भाग लो, पकाएगा. चतुर टाइप, 3 इडियट्स का. वैसे मत बन जाना प्लीज. दे डोंट नीड, दे नीड अ पर्सनालिटी लाइक आमिर खान. फाइन एंड दैट. वो बहुत आईक्यू का हाई था, इतना आईक्यू भी नहीं चाहिए आप लोगों को. एक जेन्युइनली अच्छा इंसान चाहिए यार, जो दूसरों की मदद करे, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, जिसको लगे कि ये दुनिया अच्छी है और मैं कहीं भी एडजस्ट हो सकता हूं. That's what they are looking into. You practice it daily. Practice on your communication skills daily. That is what is required. Daily 15 से 20 मिनट न्यूज सुनिए, ठीक है. डेली कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलिए, बाहर आउटडोर्स के अंदर जाइए, लोगों से मिलिए. लोगों से बात करते टाइम दिल कटना नहीं चाहिए, ठीक है. लोगों को समझने की कोशिश कीजिए. इट्स ऑल अबाउट, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम अ लीडर इन आर्मी यार, इट्स ऑल अबाउट मेन. इट्स ऑल अबाउट मेन. आप किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हो, किस तरीके से उनको रिलेट, एम्पैथी इज रिक्वायर्ड, ठीक है. तो ये सब चीजें सीखने की जरूरत है. इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ठीक है. कोई ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है. नॉर्मल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको हर चीज की. और क्या क्वेश्चंस है, रुकिए. देखिए अब आता है विकास, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ टू फेस डेली. अब देखिए, डेली के गोल्स जरूर रखिए कि आज मुझे ये करना, आज मुझे. अगर आपका डेली 100% नहीं भी फॉलो हुआ, 70% तो कर ही लोगे, 50% तो कर ही लोगे. कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है नहीं. अगर कुछ नहीं होगा, गोल तो पता ही नहीं होगा आज किया क्या है यार. कम से कम टाइम टेबल. आते बच्चे, हाँ मैं टाइम टेबल बनाता हूँ पर मेरे से तो पूरा ही नहीं होता. यार कोई बात नहीं, 50% तो करता होगा, अदरवाइज वो भी नहीं करेगा. तो make it. Why not to make it? And no need to be scared of that. कोई घबराने की जरूरत नहीं यार. 50% कर रहे हो, कल 60 भी करोगे. कोई कोई दिन होगा जब 100 का 100 भी होगा, फिर कोई दिन होगा जहां 30 भी नहीं होगा. इट्स ओके. स्टार्ट विद द फ्रेश एनर्जी टुमारो अगेन. आज तो मैंने ये करके ही रहना है. और सबसे ज्यादा क्यों नहीं होता है, जब तुम्हारी सुबह खराब होती है. जब तुम ये अलार्म स्नूज करते हो ना हर रोज, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, उसके बाद सुबह बर्बाद तो पूरा दिन बर्बाद. सुबह अगर आपके पास फ्रेश है, आपके पास टाइम है, यू कैन प्लान आउट थिंग्स, यू कैन राइट द थिंग्स ऑन, यू नो, द थिंग्स टू डू टुडे. देन देखना, यू कैन कंट्रोल योर कंप्लीट डे, और एंड तक आपका टाइम टेबल आपके कंट्रोल में रहेगा. फाइन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और पूछिए मैम, हाउ टू वर्क अपॉन योर वीकनेसेस, वीक इन मैथ्स. प्रैक्टिस. हर वीकनेस का एक ही इलाज है बेटा, प्रैक्टिस. यू नो इट, प्रैक्टिस इट. व्हाट एल्स. और प्रैक्टिस हर चीज की. मैं तो सच कहती हूँ, सिर्फ मैथ्स नहीं, मैथ्स लिख के प्रैक्टिस नहीं होता. हर चीज को, जहां कंफ्यूजन होती है, स्टार्ट पुटिंग योर थॉट्स ऑन द पेपर. व्हेन यू पुट योर थॉट्स ऑन द पेपर, यू सिंप्लीफाई थिंग्स. आपके अंदर से वो निकल जाती है चीजें. जब पेपर पे आ जाती है, आपको अपनी जिंदगी समझ आने लग जाती है बहुत ज्यादा बार. Write it down. Write your goals on the paper. Write your things to do on the paper. Write your timetable on the paper. Write everything on the paper which you want to achieve. Put it on your study table daily. Daily सुबह उठिए, देखिए और समझिए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें. Clear? What else? There are many questions. Ma'am, when your women can be allowed to join infantry or combat up near future? Ask them to prepare for. Fine. हाँ. So अब फाइटिंग आर्म्स देखिए बेटा, विमेन की जर्नी इन दिस सोसाइटी वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है. आप समझ के देखिए, कुछ साल पहले इवन getting education was considered as a privilege for women. You all know that. Ask your nani, ask your dadi, ask your mothers. Things are gradually changing. They are making their space impact everywhere now. Forge
जो पहले थी ऑर्गेनाइजेशन वाज मोस्टली किस चीज के ऊपर डिपेंड करते थे हम, फिजिकल्स बहुत ज्यादा था। हमारी इंडियन आर्मी इतनी टेक्निकल नहीं थी। जहां फिजिकल्स की बात आ जाती थी उस टाइम पे ट्रेनिंग विमेन की इतनी हार्ड नहीं थी। अब आप इमेजिन करके देखिए बेटा, अब जब गर्ल्स एनडीए के अंदर जाएंगी, व्हेन दे विल गेट द सेम ट्रेनिंग एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स, फिजिकल स्टेमिना क्या यार कितना ही बढ़ा लो। आप में से कोई मैरी कॉम के साथ लड़ाई कर सकता है जिसने बॉक्सिंग कभी ना की हो? तो उसमें स्ट्रेंथ की क्या बात आई, स्किल की बात आई। जिसने सीखी सीख ली, जिसने स्टेमिना पे इंप्रूव किया कर लिया। बैडमिंटन अगर आप में से कोई साइना नेहवाल के साथ खेलेगा, आप जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे भाई, चाहे आप मेल हो चाहे कुछ हो, उसने ट्रेनिंग की है, उसने प्रैक्टिस किया है। सिमिलरली once the girl will start also focusing on their physical strength, I'm sure with time they are going to improve on that, and once they will improve on that, और देखिए फाइटिंग आर्म्स में और भी बहुत सारी चीजें होती है। एज अ सोसाइटी वी नीड टू चेंज फर्स्ट, ठीक है। रिक्रूटमेंट भी लड़कियों की होनी बहुत जरूरी है। तो स्लो एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर इंप्रूविंग, एंड आई एम श्योर इन नियर फ्यूचर देयर विल बी अपॉर्चुनिटी बीइंग गिवन टू द गर्ल्स आल्सो। देनी भी चाहिए बेटा, वी ऑल आर डिफरेंट। मुझे ऐसे लगता है हमें कभी भी किसी को अपॉर्चुनिटी से दूर नहीं रखना चाहिए बेस्ड अपॉन ईदर कास्ट और जेंडर और कलर और एनीथिंग। हर चीज का क्राइटेरिया कॉम्पिटेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, है ना। मेक सम क्राइटेरिया, जो उसको क्लियर कर पाता है गिव देम अ चांस टू एक्सप्लोर। देयर आर मेनी गर्ल्स यार जिनके लिए देयर करियर, देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, देयर दिस इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस। कुछ लड़कियां जिनके लिए देयर फैमिली, देयर एवरीथिंग, देयर, तो यू कांट से दे आर रॉन्ग और दे आर रॉन्ग। जिसको जो लाइफ के अंदर प्रायोरिटी है, जो चीज से खुशी मिलती है, उनको वो करके जरूर देखना चाहिए। और उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी ये हक देता है, वो अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू देम। दैट इज व्हाई दिस पीसी वाज गिवन टू देम, अदरवाइज परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता। और अगर वो कॉम्पिटेंट है तो व्हाई कांट दे? आप स्टैंडर्ड रखिए ना, जो स्टैंडर्ड नहीं मीट कर रहा वो नहीं जाएगा, जो स्टैंडर्ड मीट कर रहा है दे विल गो। चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो एवरीथिंग शुड बी बेस्ड अपॉन कॉम्पिटेंस। इज दैट क्लियर? फाइन। चलिए अब और बहुत सारे आई थिंक यार बच्चों, यू कैन सेंड मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। आई एम अवेलेबल ओवर देयर। माय नेम वहां पे है कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह करके, ठीक है। दैट्स माय इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन मैसेज मी ओवर देयर। मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है बच्चों, कैप्टन सुनैना सिंह। फाइन, आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें मेरे अपकमिंग जितने भी कोर्सेज होते हैं या एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम, व्हाटएवर लिटिल आई नो आई शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। और मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर मैं किसी भी बच्चे की एक भी क्वेरी क्लियर कर पाई। तो आई थिंक नाउ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, जितने क्वेश्चंस हैं यू ऑल कैन सेंड मी ऑन द ईदर ऑन द टेलीग्राम और ऑन माय इंस्टा पेज। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू ऑल बैक, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपकी कोई भी क्वेरी हो वो है। जो बच्चे एसएसबी के लिए तैयारी करना चाहते हैं दे कैन जॉइन दैट एसजीपी जिसको बोलती हूँ मैं एसजीपी 3। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 फरवरी। एसजीपी 2 कल आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बोलती हूँ एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम। सो यू ऑल कैन कम ओवर देयर, यू ऑल कैन जॉइन देयर। फाइन, चलिए फिर, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप मैं बता पाई। Okay, I have linked Sunana ma'am's थैंक यू Insta. थैंक यू, so So- sweet of you. So over to Thank you over so to Ria. It was wonderful listening to you, ma'am. Thank you so much for this enlightening session. And there's just one thing. We have come up with a short video clip that we want to present for you. Oh yeah, that's so sweet. सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। That's so
sweet, Ria. Thank you so much. Please do send me this video on WhatsApp also. Fine. Sure, This ma'am. is so sweet. I'm so touched. Thank you so much, dear. Thank you. Ma'am, well, this was just a glimpse of how eminent of a personality you are. And ma'am, we also have a small request. It will just take a minute of yours. We just want to click a picture with you. We'll just click a screenshot. So I request all of you to turn on your cameras. Yeah, please. Yeah. Suraj, nice hairstyle. Good. Okay, it is done. Now I invite our convener, Dr. Aprajita Majumdar ma'am, for her kind words and a vote of thanks for our honorable guest speaker. Thank you so much, Ria. And on behalf of the entire NEEV Society and the Ramanujan family, all my students here and my colleagues who are present with us, I extend a very, very heartfelt and sincere gratitude to you, ma'am, for joining us today. And indeed, आपने जब शुरुआत में कहा कि किताबों से वो ज्ञान नहीं मिलता जो किसी ने अगर अनुभव किया है उससे सुनने में जो प्रोत्साहन मिलता है और उससे सुनने में जो मोटिवेशन मिलता है. And I'm sure कि the students here have been hugely motivated. In fact, I got hugely motivated because a lot of the things that you said, it's not only applicable to the students, but it is also applicable to us also. So, managing our time and prioritizing the things. And, it's not only the students who are sometimes just looking at the Netflix, we also do that at times. And, so we need to consciously think about where we are spending our time. And I'm sure that once we do that, we will be able to, achieve far more things from our days and from our life. And एक और चीज आपने जो बहुत अच्छा बताया, और I'm sure बच्चे भी वो अनुशासन जो उसका अनुसरण करेंगे, including me, that you need a discipline in your life, and I think army brings that, but I think we need to prepare that, in our own ways every day, so that we can prepare ourselves to be there in army, and also to get inspired from, personalities like you, and imbibe that. So I think अनुशासन बहुत जरूरी है जीवन में कुछ भी achieve करने के लिए, consistency, अनुशासन. So thank you so much, ma'am. I am sure you do have a very busy schedule, but you took out the time to come and address our students here. Also a big thank you to the entire team, Piyush, Amit, and the other students who have been working since last few weeks to get all the things together to organize it. And since we are in the online mode, so it's all via WhatsApp, phone and everything. So they have been constantly in touch and putting together all this program. So thank you so much to the entire team and all the students and my colleagues who have joined us today. And I'm sure all of us have benefited a lot from your wise words. Thank you so much. Thank you so much, Aprajita ma'am, and pleasure was all mine interacting with these young students. I always myself feel so motivated. जब मैं बच्चों के साथ होती हूँ, that's the best time of my day. So even I was looking forward जब मेरी रिया से बात हो रही थी, and all the best to each one of you. And I just want to tell you all that life is what we make it. So let's make it more positive, and let's make this world much more positive place for not just for us, but for everyone. So thank you so much once again. Stay happy, stay blessed, and keep smiling always. That's what I just want. Thank you. Thank you. Thank you so much. So do we just close the meeting, or you have something else to share last? No, I think I'm done with. So thanks again to all of you. Okay. Fine, Charlie. Thank you. I'll just leave the meeting now. Thank you, Piyush, and thank you, Ria. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Amit. Thank you so much for joining, ma'am. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Yeah. Thank you, all of you.
it was well organized. Everything was nice. And I hope some of you are doing. Oh, it's good to see some of my old students here. I can see Rupesh, and I can see some other students. So it was good. And thank you to all my colleagues also who joined. Tenzing was here, Vikas ji was here, Umesh sir was also here, Rajiv ji was also here. I am not sure if they are still here, but yeah, thank you so much. And good efforts, all of you. And please have a report ready so that we can, send it across to college. You can share it with me, and then I can share it with college. Yeah, anything else that you would like to say, or we can just close the meeting? Just one last thing. In case anyone missed those links, if anyone wants to connect to Sunana ma'am, they can do so. I have just put on the message again. And if you have any feedback, any queries, or anything which you want to address, you can text us. We will be available. And that's Piyush, about I it. hope we have a feedback form. Do we have a feedback form ready? No, ma'am, it's not ready, but it will be ready in a few So we minutes. do need to do that. Okay, so we need to get a feedback form ready and circulate with all the participants so that they can give us a feedback, and we can then, for our future sessions, we can take some suggestions from there. Okay, sure, definitely, ma'am. So if you can get it ready and just show me once before circulating it. Sure, ma'am. That will be done. Okay. This was it about the informative session. Before we conclude the session, I request our President, Amit Kumar, for a vote of thanks to all the participants. Thank you, Manasvi. I must thank a special thank to our Dr. Aprajita ma'am, convener of NEEV, for providing immense support to make the webinar successful. And I thank everyone who have joined us, who have helped us to make this webinar successful. Thank you, everyone. With this, we conclude this webinar. Thanks for joining us.
Hello everyone. Those who are not the core committee of NEEV, they can leave. I hope you all had a very good session. The core members are requested to stay back. If they wish, we can discuss a few things. Rest everyone can leave. Riya, is Rishabh a part of our team? No, he left. अच्छा, चलो ठीक है. ओके, तो सबसे पहले तो अमेजिंग जॉब रिया, मानसी, विदाउट डाउट द फ्लो ऑफ परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ग्रेट जॉब एट द एंड अमित. सॉरी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन चेंज हो गया था बिकॉज अगेन पैरासिटी ऑफ टाइम, तो आपका वो ऑलमोस्ट रह ही गया था, बट थैंक्स टू मानसी शी सेव्ड इट. सो ग्रेट वर्क गाइस. अ फ्यू थिंग्स, थोड़ा सा आप लोग पहले बताएं कि हाउ डिड यू लाइक द सेशन. ओके, मैं बस पूछ रहा था सेशन ठीक रहा आप लोग के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल.